Good morning, everyone. How are you all? Hope so that you all are fine at your house. So now we are going to start our history chapter number 2. जैसे कि हम लोगों ने हमारा chapter number 1 खत्म कर लिया था. So now we are starting our chapter number 2, the earliest society. So we are starting with the glossary portion. And in this glossary portion, the first question is sites. The places where the remains of the things made used and left behind by early human are found. मतलब कि जिस जगहों पर the places where कि the sites means कि जहाँ पर हमें बची हुई चीज़ें और the remains of the things are made or been used जो कि बचा हुआ है बाय द अर्ली ह्यूमंस आर बीन फाउंड. मतलब कि जो भी रिमेन्स ऑफ द थिंग्स है, जो भी बची हुई थिंग्स है, दैट आर बीन फाउंड बाय द अर्ली ह्यूमन, दैट इज नोन एज एन साइट्स. द सेकेंड क्वेश्चन इज ग्रेजुअली. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली. ग्रेजुअली मतलब क्या होता है? स्लोली. आफ्टर ग्रेजुअली द थर्ड क्वेश्चन इज एंकरेज. एंकरेज मीन्स टू इंस्पायर. मतलब किसी भी चीज़ को इंस्पायर करना. अचीवमेंट, अ थिंग डन सक्सेसफुली विथ एन एफर्ट. मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का एफर्ट डालते हो एंड देन दैट थिंग इज बीन डन सक्सेसफुली, दैट इज नोन एज एन अचीवमेंट. मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. किसी भी चीज़ अगर कोई मिस्टीरियस है देन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट. Shifting cultivation, a type of agriculture system wherein types of the land is clear, crops are grown and the patch is then deserted until the soil regain its fertility. What does the shifting cultivation means? Now let me explain you that the shifting cultivation means कि वो एक ऐसी एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसके अंदर जो लैंड है उसे क्लियर किया जाता है. द टाइप्स ऑफ द लैंड इज बिन क्लियर्ड, द क्रॉप्स आर देन ग्रोन. वहाँ पर क्या किया जाता है? देन द क्रॉप्स आर बीन ग्रोन ओवर देयर. And after the crops have been grown, what has been there done is that then the again soil will regain its fertility. What will happen? That the soil will regain its fertility. और बीच में the patch is been deserted means कि अगर सबसे पहले the type of the agriculture system where the land has been cleared, the crops are been grown and then the patch has been deserted until the soil regain its fertility back. कल्टिवेट. कल्टिवेट मीन्स टू प्रिपेयर एंड यूज ऑफ द लैंड. मगर आप किसी भी चीज़ के और किसी भी लैंड का यूज़ करते हो दैट इज नोन एज एन कल्टिवेशन. डेमोस्टिफिकेशन, टू ब्रिंग इन यूज फ्रॉम वंस कंट्री. Emphasis means the special importance or you can say the value. And the last one is dwellers, a person or animal who lives in a special place, that is known as an dwellers. Okay, so these are the glossaries which you have to learn about the chapter number 2. Okay, and now the thing which you have to do is in your HW portion you have to write down this glossaries by giving the heading chapter number 2. Okay, so now we are going to start our chapter or you can say the syllabus. So everyone, welcome back to the chapter the earliest society. So today we are going to start with our chapter number 2, the earliest society. In this chapter what we are going to study is about the ages like the Stone Age, Paleolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age, the invention of the wheel and how the fire was been discovered. Here is the history maker. You can just read it out. The Sir Lubbock was an English banker or an philanthropist, politician and scientist. The term Neolithic was coined by Sir Lubbock in 1885. In his book Prehistoric Times to Donate New Stone Age, उन्होंने Neolithic Age को फाइंड किया था, उन्हें कॉइन आउट किया था. He was instrumental in establishing archaeology as a scientific discipline. He was trying to establish the archaeology as the scientific discipline. So let's have a glance first of all in the chapter.
that the prehistory, this is all what we are talking about, the prehistory portion means the portion which is in which we are not having any writing thing. We have already discussed this thing in our chapter number 1, that we can classify periods into two, prehistory and history. prehistory और history में prehistory मतलब कि उतना जिसका हमारे पास राइटिंग कुछ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री का हमारे पास वी आर हैविंग द राइटिंग रिकॉर्ड्स. सो दिस इज द प्री हिस्ट्री को हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं: पैलियोलिथिक एज, Mesolithic age, Neolithic age, and the humans appeared on the earth. Let's start with the humans appeared on the earth. Early humans were hunter gatherers, मतलब वो हंट करते थे. They were cave dwellers and wore animal hides. वो केव में रहते थे. और what do they wear on their बॉडी? तो वो एनिमल्स को मार के उनकी स्किन को यूज़ करते थे अपने बॉडी को ढकने के लिए. एंड दे यूज्ड टू स्टे इन द केव्स. टूल्स वेयर मेड ऑफ बोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स. वो स्टोन्स, बोन्स और स्टिक्स को मिलाकर अपने टूल्स बनाते थे. नाउ व्हाट इज पैलियोलिथिक एज? डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज मेजर अचीवमेंट. पैलियोलिथिक एज के अंदर फायर वॉज बिन डिस्कवर्ड. यू शुड रिमेंबर दिस. Stone tools came to be shaped by the core tools, flake tools and blade tools. इस एज के अंदर स्टोन टूल्स को उन्होंने शेप आउट किया, उन्हें वो शेप किया, उन्हें शार्प किया. Mesolithic age. There was a change in a diet with the increased intake of the plant food. यहाँ पर उनका डाइट चेंज हो रहा है क्योंकि वो प्लांट फूड का इंटेक बढ़ा रहे हैं. Tools made and used were smaller, sharper and more efficient. यहाँ पर वो छोटे टूल्स यूज़ करते थे, शार्प टूल्स यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स यूज़ करते थे, मतलब काम आने वाले टूल्स को यूज़ करते थे. The Mesolithic age saw the domestication of animals. उन्होंने domestication of the animals को भी देखा. Neolithic age means this age saw the beginning of agriculture and animal husbandry. यहाँ पर agriculture start हुआ और animal husbandry को भी start किया गया in Neolithic age. The wheel was invented and use of pottery began. यहाँ पर पोट्री बनाना शुरू किया और यहाँ पर व्हील को इन्वेंट किया in Neolithic age. So this is what we are going to study in the whole chapter. Okay, so the understanding prehistory. We are starting from understanding the prehistory. Evidence suggested that Homo sapiens, or the species to which modern humans belong, appear on the earth 2 lakh years, not 2 lakh, yes 2 lakh years ago. मतलब कि जो एविडेंस मिले थे होमो सैपियंस और द स्पीसीज ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस को कि यहाँ पर अर्थ पर 2 lakh years ago से ह्यूमंस रह रहे हैं. द ह्यूमंस आर स्टेइंग ओवर हियर from 2 lakh years ago. This is the time when our early ancestors, the Homo sapiens, were hunter gatherers. 2 lakh years ago हमारे जो ancestors थे वो hunter gatherers थे. This means that they hunt wild animals, caught fish and birds and gather fruits, roots, seeds and leaves. Hunter gatherers का मतलब है कि वो wild animals को hunt करते थे, fish और birds को पकड़ते थे, fruits, roots और seeds और leaves को खाते थे. To gather their food, they have to move from place to place. Therefore, our early ancestors were nomads. मतलब कि वो एक जगह पर रहते नहीं थे. They used to move from place to place. अगर वो एक जगह पर रहते हैं, वहाँ का fruits और वो सब खत्म हो गया, they will move to the second place. Now the class discussion or the thing which you have to remember, और I am asking you the question is कि आप सोच सकते हो कि उन्हें क्या क्या difficulties आई होगी फूड इकट्ठा करने में. आप में से कौन मुझे बताएगा? आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द लाइव सेशन ऑल्सो. फाइंड आउट द आंसर्स. एटलीस्ट यू शुड हैव 3 डिफिकल्टीज कि अर्ली ह्यूमंस ने क्या फेस की थी. व्हाट डू दे फेस फॉर फाइंडिंग आउट द फूड्स. नाउ लेट्स मूव विद द चैप्टर. प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस वेर केव ड्वेलर्स, मतलब कि वो केव में रहते थे. They wrote animal hides to protect themselves from extreme cold.
बहुत ज़्यादा ठंडी से बचने के लिए दे यूज टू वेयर, एनिमल्स की जो स्किन होती है उनको वेयर करते थे. दे ऑल्सो यूज टूल्स मेड अप ऑफ द बोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, टू कट डाउन ट्विग्स फ्रॉम द ट्रीज एंड टू हंट एनिमल्स. वो क्या करते थे, दे यूज की बोन्स, स्टोन्स और एनिमल्स, उन सब को कट डाउन करने के लिए, मतलब उन सब का यूज़ करते थे बोन्स, स्टोन्स और स्टिक्स को, कि अब वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रीज को कट डाउन करने के लिए भी. So now we are moving to the ages. The first age is the Stone Age. Human beings evolved gradually from an apple-like creatures to upright modern humans. पहले के जो humans थे और अब के humans थे, they used to change gradually. Gradually मतलब धीरे धीरे they used to change their eating habits, their living habits, their walking, talking, each and everything. Who could balance themselves on their feet. Now what they have become an upright modern humans जो अपने आप को अपनी feet पर balance कर सकते हैं. These freed their hands and result in the evolution of the thumb. ये बहुत बड़ा change लाया है. This brought a huge change in it. They could hold objects, वो अब objects को hold कर सकते हैं. Their brain size also developed, उनका brain भी developed हुआ है. In the course of the time, they realized that broken stones could be used for different purposes. धीरे धीरे वो समझते गए कि टूटे हुए पत्थर को भी हम बहुत सारी जगहों पर use कर सकते हैं. Thus, the early human began to make tools. The main material that they used was stone as it was easily available. सबसे मेन मटेरियल उन्होंने जो यूज़ किया वो था स्टोन्स, क्योंकि वो बहुत इजीली उन्हें मिल जाता था. इट वॉज रियली वेरी इजीली अवेलेबल. आप आज की डेट में भी देख लो, आपको स्टोन बहुत इजीली मिल जाता है. यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर. This is why historians call this age as the Stone Age or the period as the Stone Age. इसीलिए ये जो पीरियड था जब उन्होंने रियलाइज किया दैट द ब्रोकन स्टोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द वेपन्स और द टूल्स, दैट एज दे नेम्ड एज द स्टोन एज. स्टोन एज को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज, मेसियोलिथिक एज और द मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज. मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और द न्यू स्टोन एज, पियोलिथिक एज, मेसियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो तीनों वर्ड है, पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये तीनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है, ओके, जिसका मतलब होता है स्टोन. Let us start with Paleolithic age. The old Stone Age or Paleolithic age lasted approximately 5 lakh BCE to 10,000 BCE. 5 लाख BCE से 10,000 BCE तक हमारी ओल्ड स्टोन एज थी और यू कैन नोन एज एन पैलियोलिथिक एज. During this period, human beings lived a nomadic life, wandering in groups from place to place in search of the foods and shelters. मतलब कि उनका कोई ठिकाना नहीं था. नोमियोमेडिक लाइफ मतलब कि कोई ठिकाना ना होना, इधर उधर घूमते हुए मुसाफिर कैसे होते हैं ऐसा, मतलब उनका कोई एक सेटल्ड लाइफ नहीं थी. They used to roam here and there, they used to wander everywhere in search of food and shelter. That was the Paleolithic age or the old stone age. Now the Paleolithic age. The early Paleolithic age correspond to the time when the first stone appeared. सबसे पहला stone appear हुआ in the early Paleolithic age. This tool, the tool used were the hand axe and the chopping tools. At that time the climate was extremely cold and many parts of the earth were covered of an ice. This is why this age is known as an ice age. दी अर्ली पैलियोलिथिक एज को आइस एज भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी एंड मोस्ट प्रोबेबली एवरी रीजन वॉज बीन कवर्ड विद दी आइस. इन इंडिया लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सोयन इन पंजाब, जो कि अभी रिवर नर्मदा है. जब हम मिडियल पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, पीपल लार्जली यूज्ड
फ्लिक टूल्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. Some home implements such as the needles and have found indicating that furs and animal skins were sewn crudely to cover the human body. इस एज में वो फ्लिक टूल्स को यूज करते थे एंड वो क्या यूज करते थे, एनिमल्स की स्किन को यूज करते थे टू कवर देयर बॉडी और टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम कोल्ड. दिस इज द टाइम व्हेन पीपल बिगैन टू फॉर्म एंड लिव इन ग्रुप्स. तब उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया. दे बिगेन टू पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. वो केव्स की वॉल को पेंट करते थे. अ नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ दैट स्टार्टेड एट दिस टाइम was brutal of the death. In India, middle Paleolithic age have been found on the banks of the river Luni in the Rajasthan and Narmada Valley. उस टाइम पर रिवर लूनी जो राजस्थान में और नर्मदा वैली में ये सब चीज़ें होती थी. एंड द अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर करस्पॉन्ड द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज. ये पैलियोलिथिक जो आइस एज है उसका लास्ट स्टेज है जहाँ पर क्लाइमेट गर्म होता गया. द क्लाइमेट बिकेम वार्मर. पीपल ऑफ दोज टाइम मोस्टली यूज अ ब्लेड टूल्स. अब इस एज पर आने के टाइम पर जो कि पीपल से उनके पास ब्लेड टूल्स होने लगे. दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्स्ट ह्यूमन मेड शेल्टर्स. तब उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेड शेल्टर्स देखे. पीपल अपने नेकलेसेस बनाने लगे, ब्रेसलेट्स बनाने लगे यूजिंग द शेल्स एंड द बोन्स ऑफ द एनिमल्स और any humans. In India, the most notable upper Paleolithic sites have been found in Bhimbetka in Madhya Pradesh. Okay. So by moving to the next one, yes. At this time, the humans were not food producer. वो food produce नहीं करते थे अपने आप. Means वो vegetables, grains को grow नहीं करते थे अपने आप. However, there was a tremendous progress in the manufacture of the tools along with the discovery of fire. जैसे ही fire की discovery हुई, the tools that were manufactured, there was a tremendous change in that. Tremendous change मतलब कि बहुत बड़ा change. Let us learn more about the subdivision of a Paleolithic age from the flow chart given on the previous page. We have already done it. Paleolithic people and need for the tools. The primary means of the survival of the people was hunting animals and gathering plants for food. उनका main motive क्या था वहाँ पर रहने के लिए? टू सर्वाइव ओवर देयर. व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द पीपल ओवर देयर? कि एनिमल्स को हंट करना है और प्लांट्स में से फूड को गैदर करना है. अर्ली ह्यूमंस देयरफॉर रिक्वायर्ड टूल्स. अगर उन्हें एनिमल्स को मारना है और प्लांट्स में से गैदर करना है फूड तो उन्हें कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो क्या करेंगे? वो मारेंगे. दे विल हंट एंड एज वेल एज प्रोसेसिंग द फूड. वो उन्हें मारेंगे तो उनके लिए उन्हें वेपन्स की नीड पड़ेगी. They began to shape stones into and crude knives, axe heads, choppers and cleavers. Stone could be shaped and sharpened into a variety of sizes and did not break easily. स्टोन जो था वो उन्हें इजीली शार्प कर सकते थे, उन्हें शेप दे सकते थे जैसा उन्हें चाहिए था और वो इजीली ब्रेक भी नहीं होता था. सो दिस वॉज बीन एंड बेनिफिशियल फॉर दैम. Prehistoric people use stone tools for a variety of the purpose. वो मीट कट करने के लिए स्टोन्स का यूज करते थे, एनिमल्स को हंट करने के लिए कटिंग डाउन द ट्रीज, क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड स्मूदनिंग द बार्क्स एंड एनिमल स्किन. इन सब चीज़ों के लिए वो स्टोन्स का यूज करते थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टोन्स कि स्टोन्स कौन कौन से टाइप्स के थे. यहाँ पर जो आपको स्टोन दिखा है दैट इज द कोर टूल. मतलब कि जो ह्यूमन बींग के हाथ के जितने शेप का था. आप अपना हाथ देख लो, इतना स्टोन हुआ करता था. एंड वो इसको क्या करते थे? वो थ्रो करते थे इसको. दे यूज टू थ्रो एंड पाउंड इट. सो नाउ दिस वन इज द फ्लेक्स टूल. हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा फ्लेक्स टूल पर, लेकिन मैंने आपको बोला था दैट वी विल स्टडी इट इन फर्दर. इसको वो लोग स्क्रैपलिंग के लिए यूज करते थे, मीन्स टू स्क्रैपल आउट. नाउ दिस वॉज द ब्लेड टूल्स. मतलब कि जो ट्वाइस इन लेंथ था अपनी ब्रेथ से. आप देख सकते हो लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप का होता था कि जिसकी जो लेंथ थी वो बड़ी थी रेदर देन इट्स ब्रेथ. एंड ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू नाइफ, स्पीयर्स एंड एरोहेड्स. वो इजीली उसे शार्पन करके उन्हें डिफरेंट शेप्स देते थे. अभी यहाँ पर अर्ली टाइम पर के जो स्टोन्स थे वो दिखाए गए. द फर्स्ट वन इज एन हैंड एक्स.
कि वो जिससे वी कैन से लाइक हैमर टाइप, एक्स टाइप. It was a pear-shaped tool with a sharp edge in all sides. उनकी जो edges थी वो sharp थी at the all sides. उन्हें वो use करते थे for cutting certain objects और smashing things. Smash मतलब कि उन्हें तोड़ने के लिए. तो तोड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को कट करने के लिए they use hand axe. Chopper. It was made by sharpening the thinner edge of the stone and it was used for chopping meat. वो मीट को चॉप करने के लिए यूज़ करते, जैसे हम नाइफ को यूज़ करते हैं, उनकी एजेस शार्प रखते थे और उन्हें चॉप करते थे. क्लीवर. क्लीवर जो है वो वाइस चीजल टाइप एज है जो कि कट अदर स्टोन्स और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. वो दूसरे स्टोन्स को भी कट कर सकता था उन्हें शेप देने के लिए, एंड प्लस वो ब्रांचेस को कट करने के लिए भी यूज़ करते थे. दिस इज स्क्रैपर, जिसे वो क्लीन या स्क्रैप करते थे. स्किन एनिमल की स्किन होती थी तो उन्हें क्लीन करना पड़ता था, उन्हें स्क्रैप करना पड़ता था, तो उसके लिए वो स्क्रैपर यूज़ करते थे. एरो हेड, जो कि एनिमल्स को किल करने के लिए, जो दौड़ते हुए एनिमल्स को पॉइंट आउट करके किल करने के लिए यूज़ करते थे. दिस वेर द ब्लेड्स, एंड ये स्मॉल स्टोन्स है और टूल्स जो कि फ्लेकिंग से बनाए हैं. एंड देयर वेर द टू सिमिलर और पैरेलल कटिंग एजेस, उनकी दोनों साइड कटिंग एजेस होती थी. सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिस्कवरी ऑफ फायर. फायर किससे डिस्कवर हुआ? लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज वॉज डिस्कवरी ऑफ द फायर. It was the turning point for the humankind. यहाँ पर totally everything changed because the fire was been invented. Though early humans may have seen natural fire, the creation of fire was by chance or an accident. उन्होंने गलती से फायर को इन्वेंट कर लिया. उन्होंने नेचुरल फायर तो देखी थी, लेकिन बाय अ चांस और यू कैन से एंड बाय एन एक्सीडेंट दे इन्वेंटेड फायर, दे क्रिएटेड फायर. आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट फायर वॉज प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर. उन्होंने दो पत्थरों को लेकर उन्हें घिसा, मीन्स इट वॉज एन एक्सीडेंटली हैपन. तो दो पत्थरों के घिसने की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिटर्न में तो है नहीं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू ऑल्सो बिलीव, क्योंकि आर्कियोलॉजी से कुछ रिसर्च करके स्टडी करके बताया होगा. सो दिस इज़ व्हाट विच वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिलीव इज कि दो फायर और टू स्टोन्स आर गोइंग टू बी रब्ड एंड द फायर हैज बीन डिस्कवर्ड. Gradually, early human learned how to use fire in a variety of ways. Fire had the following advantages. Now we will study कि fire के क्या क्या advantages होते हैं. यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि how they have invented fire in the picture. It could keep people warm and light up dark in the caves. वो लोग caves में रहते थे जो बहुत ज़्यादा darkened होती थी, तो वहाँ पर लाइट रहने के लिए उन्हें फायर मिल गई. प्लस ठंडी से बचने के लिए they would get warm by having fire. It helped human to roast and cook food. खाना पकाने के लिए उन्हें फायर काम आती थी. It used to scare away wild animal and help early humans in their battle of survival. उन्हें जिंदा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को मारते थे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आकर ह्यूमन बींग्स को मार देते थे, तो उन्हें डराने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे और जो उन्हें जिंदा रहने के लिए हेल्पफुल होता था. Shizuwenza in an canine, East Africa shows one of the earliest evidence of the fire in the lower Paleolithic age. यहाँ पर हमें एक माइंड मैप दिया गया है. फायर, इट वॉज एन एविडेंस ऑफ द यूज बाय एन Chizovania in Kenya and Kunal in India. It was been and created by an accident. It was discovered in the Paleolithic age और उनके uses हमें दिखाए गए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो वार्म प्रोवाइड करते थे, केव्स को डाकन अप करते थे खाना पकाने के लिए, एंड ऑल्सो कीप अवे द वाइल्ड एनिमल्स विच वर कमिंग नियर टू दैम. यू शुड बी रीड दिस टू बी एन हिस्टोरियन. इसके बारे में वी विल डिस्कस इन आवर लाइव सेशन, सो रीड दिस. You will get to know a lot many things from that. Paleolithic and Mesolithic sites. So यहाँ पर हमें दिखाई गई है Paleolithic sites and Mesolithic sites. Okay? तो इसके बारे में हमें यहाँ पर दिखाया गया है. आई विल एक्सप्लेन यू द मैप आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि मैंने मैप को लास्ट में रखा है फॉर द लाइव सेशन. सो डोंट वरी अबाउट इट. आई विल एक्सप्लेन यू द मैप इन आवर
live session. So let's end today till here. Tomorrow, what or in the next live session, we will study about the Mesolithic age. What is Mesolithic age? And then we will see the case study. वो आप read करोगे case study at your house, and we will discuss about the case study in our live session. Neolithic age, we will study about the Neolithic age, that how the ancestors used to be in this. And after the Neolithic age, what we are going to do is we are going to study about the social practices and the religious belief which the people were having in that era. Okay, so hence our chapter will get over there. So the other things we will study in our next video lecture. So thank you everyone and have a nice day.